آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ ایٹامک ٹائم اسکیل کو وزیراعظم نے کیا قوم کے نام معنون، انسانیت کے لیے کام کرنے والی تحقیق پر توجہ دینے کا مشورہ۔ کسان تنظیموں کے ساتھ مرکزی حکومت کی 7ویں مرحلے کی بات چیت، تعطل ختم کرنے کے لیے اقدامات پر غور۔ ٹیکے کی تقسیم کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے اقدامات شروع، جاریہ مہینے کی 7 تاریخ کو تمام اضلاع میں چلائی جائیں گی آزمائش مہم۔ اور دوردرشن و آکاشوانی کے ڈیجیٹل چینلز کی مقبولیت میں غیر معمولی 9% ترقی، وزارت اطلاعات و نشریات کا انکشاف۔ پیش تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے قومی پیمائش کانفرنس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے قومی جوہری ٹائم اسکیل کو قوم کے نام معنون کیا۔ انہوں نے قومی ماحولیاتی معیار کی تحقیقاتی مرکز کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ نیشنل ایٹامک ٹائم اسکیل نے 2.8 نینو سیکنڈ کی مہارت کے ساتھ ہندوستانی معیاری وقت بتاتا ہے۔ یہ ٹائم اسکیل بین الاقوامی معیارات کے مطابق معیار کو یقینی بنانے کے لیے لیبارٹریز کی تحقیق اور طریقہ کار میں تعاون کر رہا ہے۔ سائنس اور صنعتی تحقیق سے متعلق قومی فزیکل لیبارٹری نے اپنے قیام کے 75 سال مکمل ہونے پر اس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ تحقیق اور ترقی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہونی چاہیے۔ اسٹینڈرڈ لیبارٹری کا شلانیاس بھی ہوا ہے۔ نئے دشک میں یہ شبھارمبھ دیش کا گورو بڑھانے والے ہیں۔ ساتھیوں، نیا سال اپنے ساتھ ایک اور بڑی اپلبدھی لے کر آیا ہے۔ بھارت کے ویگیانکوں نے ایک نہیں 2 میڈ ان انڈیا کووڈ ویکسین وکست کرنے میں سفلتا پائی ہے۔ بھارت میں دنیا کا سب سے بڑا کووڈ ویکسین پروگرام بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے دیش کو اپنے ویگیانکوں کے یوگدان پر بہت گرو ہے۔ ہر دیش واسی آپ سبھی ویگیانکوں کا، ٹیکنیشینوں کا، سب کا کرتگیہ ہے۔ ساتھیوں، آج اس سمے کو بھی یاد کرنے کا دن ہے جب ہمارے ویگیانک سنستھانوں نے، آپ سب نے کورونا سے مقابلے کے لیے ویکسین کو وکست کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ نئے زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دلی کی سرحد پر احتجاج کرنے والے کسان تنظیموں کے قائدین آج مرکزی حکومت سے ایک مرتبہ پھر بات چیت کر رہے ہیں۔ اس بات چیت کے پیش نظر دفاع کے وزیر راجناتھ سنگھ سے زراعت کے وزیر نریندر سنگھ تومر نے ملاقات کی۔ دونوں وزراء نے کسانوں کا احتجاج ختم کرانے کے لیے بات چیت میں زیر بحث آنے والے مسائل کا جائزہ لیا۔ اطلاع ہے کہ کسانوں اور مرکزی حکومت کے درمیان تعطل کو ختم کرنے کے لیے حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ راجناتھ سنگھ کسانوں کا احتجاج ختم کرانے کے لیے آگے آئے ہیں۔ مرکز نے تیقن دیا ہے کہ اقل ترین قیمت کو برقرار رکھا جائے گا۔ گزشتہ مرحلے کی بات چیت میں کسانوں اور مرکز کے درمیان 2 مسائل پر اتفاق ہوا تھا۔ آج ہونے والی بات چیت میں مزید اتفاق رائے کی امید کی جا رہی ہے۔ پرسار بھارتی کے ڈیجیٹل چینلز کی مقبولیت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ 2020 میں دوردرشن اور آکاشوانی کے ڈیجیٹل چینلز نے 100% سے زیادہ ترقی درج کی ہے۔ ایک سال کے دوران تقریباً 1 ارب لوگوں نے ان چینلز کو دیکھا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ دوردرشن اور آکاشوانی کے ڈیجیٹل چینلز کو ہندوستان کے بعد سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھا جاتا ہے۔ دوردرشن اور آکاشوانی کے ڈیجیٹل چینلز کا شمار مظاہرے کے لحاظ سے ٹاپ 10 چینلز میں کیا جا رہا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ڈی ڈی اسپورٹس اور آکاشوانی اسپورٹس نے سب سے زیادہ پیش رفت کی ہے۔ ریاست میں سرکاری ملازمین کی ترقی اور تبادلے کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اس مہینے کے آخر تک جنگی بنیادوں پر یہ عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد مختلف محکمہ جات کی مخلوعہ جائیدادوں پر بھرتی کا عمل شروع ہوگا۔
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक इन इकदामात पर अमल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम महकमों के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्कद किया। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के मुताबिक हिकमत अमली पर अमल किया जाएगा। ताहम तरक्की के सिलसिले में जिले की सतह पर जिले कलेक्टर की क़यादत में एक कमेटी कायम की जाएगी। इस कमेटी में ज्वाइंट कलेक्टर और मुतालिका महकूमजात के जिलाई ओहदेदार शामिल होंगे। जिले के हुदूद में नॉन गज़ेटेड ओहदेदारों को तरक्की दी जाएगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से कोरोना की रोकथाम के लिए हिंदुस्तान में तैयार किए जाने वाले 2 टीकों को हंगामी हालात में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई है। हुकूमत ने अब टीके देने के लिए मुहिम चलाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सेहत के वजीर हर्षवर्धन ने बताया कि जिस तरह से इंतखाबात मुनक्कद किए जाते हैं, इसी पैमाने पर बूथ की सतह पर टीका अंदाजी की जाएगी। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। टीका लेने के लिए महकमे सेहत की जानिब से तैयार करदा कोविड प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। नलगुंडा जिले नागार्जुन सागर के बरखी प्रोजेक्ट में आग हादसा पेश आया। ओपन यार्ड में यह आग लगी। अमले की चौकसी की वजह से फौरी आग पर काबू पा लिया गया, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ओहदेदारों ने बताया कि इस वाक़ये की वजह से बरखी की पैदावार में भी कोई रुकावट नहीं हुई। आग पर फौरी काबू पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया है। मुल्क में हंगामी हालात में इस्तेमाल के लिए 2 टीकों को मंजूरी दी जाने के पेश नज़र टीका अंदाजी की मुहिम की तैयारी में रियासती महकमे सेहत के ओहदेदार मसरूफ हो गए हैं। हकीकी टीका अंदाजी मुहिम को पुरसुकून तरीके से मुनक्कद करने के लिए जारिया महीने की 7 तारीख को पूरी रियासत में आजमाइशी मुहिम चलाई जाएगी। हैदराबाद महबूब नगर अजला के 7 मराकिज़ पर आजमाइशी मुहिम चलाई गई थी। इस मौके पर टीका अंदाजी मुहिम में दरपेश मुश्किलात और मसाइल का जायजा लिया जाएगा। जुमेरात को तमाम अजला में फर्जी मुहिम चलाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। 1000 से ज्यादा मराकिज़ में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हर मरकज़ में 25 अफराद को फर्जी टीका दिया जाएगा। आजमाइशी मुहिम मुनक्कद करने के जरिए वैक्सीन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ट्रांसपोर्ट और तकसीम में दरपेश मसाइल की निशानदही मुमकिन हो सकेगी। नेटवर्क मसाइल का भी जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा टीका लेने वाले अफराद को कोई मसला दरपेश होता है तो इन्हें फौरी इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाने और दीगर इक़दाम करने का भी जायजा लिया जाएगा। सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि टीका अंदोज़ी की मुहिम पर आज डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और दीगर ओहदेदारों का एक इजलास महकमे सेहत के आला ओहदेदारों के साथ मुनक्कद किया जा रहा है। आजमाइशी मुहिम के ताल्लुक से इस इजलास में जायजा लिया जाएगा। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 16,505 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि 214 की मौत हुई है। ताहम सेहतियाबी का तनासुब 69.16% तक पहुँच गया है। 19,000 से ज्यादा अफराद एक ही दिन में सेहतियाब हुए हैं। नतीजे में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 99,46,867 तक पहुंच गई है। इस वक्त मुल्क में 2,43,953 अफराद का इलाज चल रहा है। सेहतियाबी का तनासुब जहां 69.16% है, वहीं अमवात का तनासुब 1.45% रह गया है। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि रियासत में इस अरसे के दौरान कोरोना के 238 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 2 अफराद की मौत हुई। रियासत में अब तक 2,87,740 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इनमें से 2,81,083 सेहतियाब हो गए हैं। मरने वालों की जुमला तादाद 1,551 है। इस वक्त रियासत में 5,106 अफराद का इलाज चल रहा है। इनमें से 2,942 अफराद अपने घरों पर अलग थलग हैं। GHMC के हुदूद में कल एक दिन में 60 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा ने कहा कि रियासत के देहातों में तरक्की मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाले फंड्स की वजह से ही मुमकिन हो रही है। नारायणपेट जिले मुस्तक़र पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को मरकज से 60% फंड हासिल हो रहा है। देहातों की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत खुसूसी इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत मरकज के फंड्स की मदद से ही देहातों में रईतु बेदिका वो दीगर काम अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कई वादे पूरे न करने में नाकाम हो गई है। वो दूसरे टीचरों की तरह सिर्फ स्कूल में तदरीस का काम तक महदूद नहीं है, दीगर अफराद को रोजगार हासिल करने में मदद देने की तकनीकी तालीम से भी फराहम कर रहे हैं। इस शोबे में उन्होंने कई तब्दीलियां की हैं। वरंगल के रहने वाले G राम रेड्डी के बारे में पेश है दूरदर्शन की ये खास रिपोर्ट। वरंगल जिले के कोगुलवाई गांव के रहने वाले राम रेड्डी ने 1969 में आदिलाबाद जिले में महकमे तालीम में टाइपिस्ट की हैसियत से अपनी मुलाजिमत का आगाज किया। इसके बाद उनका तबादला वरंगल कर दिया गया।
29 साल तक राम रेड्डी ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में तदरीसी खिदमत अंजाम दी। इसके साथ साथ उन्होंने कई तलबा को शॉर्ट हैंड की तरबियत भी दी। ख़ास तौर से SC/ST तलबा को मुफ्त तरबियत फराहम करते हुए उन्हें रोज़गार हासिल करने में मदद की। राम रेड्डी 2007 में वजीफ़ा हुस्न खिदमत पर सुबकदोश हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर एक तालीमी ट्रस्ट कायम किया, जिसके तहत उन्होंने सैकड़ों तलबा को शॉर्ट हैंड के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मुफ्त तरबियत देना शुरू किया। वो रोज़ाना सुबह से शाम तक तलबा को तरबियत देने के अलावा योगा भी सिखाते हैं और मुसाबक़ती इम्तिहानात के लिए भी तैयार करते हैं। राम रेड्डी से शॉर्ट हैंड की तरबियत हासिल करने वाले कई तलबा मुख्तलिफ महकमात में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके शागिर्द वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से लेकर मुख्तलिफ महकमात में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। राम रेड्डी ने बताया कि उन्होंने शॉर्ट हैंड पर किताबें भी लिखी हैं। డిగ్రీ వరకు చేశాను. షార్ట్ హ్యాండ్ టైప్ రైటింగ్ అప్పుడే చేశాను. 1969లో టైపిస్ట్గా డిఓ ఆఫీసులో సెలెక్ట్ అయ్యాను. అక్కడ ఒక సంవత్సరం ఉన్నాను. వరంగల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. వరంగల్ డిఓ ఆఫీస్. పాలిటెక్నిక్ లో DCP కోర్స్ అనేది, దానికి క్వాలిఫికేషన్ ఎంకామ్ కావాలి. బోత్ టైప్ రైటింగ్ అండ్ షార్ట్ హ్యాండ్ హైయర్ గ్రేడ్ పాస్ అయి ఉండాలి. ఇంగ్లీష్ లో ఫ్లూయెన్స్. దానికి అప్పుడు నేను షార్ట్ హ్యాండ్ చాలా మందికి గోకా రామస్వామి మినిస్టర్ ఆధ్వర్యంలో SC/STs కు ఉచితంగా గవర్నమెంట్ ద్వారా కోచింగ్ ఇచ్చేవాడిని. గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏంటంటే కలెక్టర్ గారు కూడా నాకు SC/STs కు ఫండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈవినింగ్ నా డ్యూటీ అయినాక అనుమతి ఇచ్చి ఇట్లా చెప్పించేవాడు నాతో. రామరెడ్డి సార్ షార్ట్ హ్యాండ్ చెప్తాడు, బాగా చెప్తాడు. చాలా మంది పిల్లలు పాస్ అవ్వడం ఉద్యోగాలు నాకు కొంచెం పేరు వచ్చేసింది. సీనియర్ లెక్చరర్గా నేను 2007లో రిటైర్ అయ్యాను. ట్రస్ట్ ప్రారంభించాలంటే షార్ట్ హ్యాండ్ చెప్పడం అనేది చాలా ఓపికతో కూడుకున్న పని. నేను చదువుకున్నప్పుడు నాకు ఎవరైనా చెప్తే బాగుందని అనిపించేది. చాలా మంది అప్పుడు నేను బీదవాడిని, అయితే కొందరు నాకు సహకరించారు. आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। एटॉमिक टाइम स्केल को वज़ीर-ए-आज़म ने किया कौम के नाम मानवन। इंसानियत के लिए काम करने वाली तहकीक पर तवज्जो देने का मशवरा। किसान तंजीमों के साथ मरकजी हुकूमत की 7वें मरहले की बातचीत, ताअतुल खत्म करने के लिए इक़दामात पर गौर। टीके की तकसीम के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से इक़दामात शुरू। जारिया महीने की 7 तारीख को तमाम अजला में चलाई जाएंगी आजमाइश मुहिम। और दूरदर्शन व आकाशवाणी के डिजिटल चैनल्स की मकबूलियत में गैर मामूली इजाफा, 2020 में 100% का इंकशाफ।